we know in M Plus safety is topmost priority, and now we are celebrating our National Safety Week. The aim of National Safety Week this time is our aim zero harm. Safety basically in any company, if you see, it starts from the top management level. It's basically the top driven, and this is the reason what we basically we take this opportunity to bring this PPEs over here to just educate our employees, the top management, to just emphasize their awareness, so that whenever they are going to meet any at site with our employees or maybe sometimes customer, they can emphasize on the safety. We also take this opportunity to conduct different training programs. This is one of the steps basically where we are going to engage all our employees and including our top management just to emphasize on safety, so that the clear message basically is go to all our employees level that safety is very important in our organization. So this is basically R-class shoe, which normally at site level, if you see our engineer, those who are involved in electrical related work, they used to wear it, and that is different category of basically the suits comes. So based on the requirement they are using. These are safety shoes. Recently, what we based on the site requirement, we just inquired and we found that this is the shoes where basically there is a steel sole basically laying inside the shoes, which is very helpful at sites, especially at the construction sites. Then we have the different respiratory equipments. It is basically there is a basically HEPA filter, it is called that. We need to install here, and then the person in different dusty environment and all, they can just wear it, and then comfortably they can work with this equipment. This is basically noise cancellation tool. This is ear muff, and then we have this ear plug also. So where the noise level is very high, they are basically they can just wear it and then they can work comfortably. Then we have different type of safety goggles. So there are a few goggles which on the top of the normal any power goggles, if the person specs if they are using, on the top of that they can wear and then they can work it. Then there is the sets of the hand gloves, cut resistance hand gloves. So it starts basically from the cut resistance 1, then it goes up to the 7 or 8 level also. So based on the severity level, the gloves can be used. And then of course we have this roto system. So this is one of the critical equipment, especially where we are going to de-energize that equipment to work upon that. So first we ensure to de-energize that equipment, and then we put that lock, so that even someone wants to unintentionally switch on that equipment, it won't get happen, and the person would be basically safe. So these are the things. Then of course there is a rescue hook also. If someone suppose gets electrocuted, with the help of this rescue hook, we can just detach the person from the live, where the person is basically electrocuted. We can just detach that person from there. So these are the broadly the safety here. What basically we are looking for our based on the site requirement, we are prepared to introduce at our sites. मेरा नाम सच्चिदानंद है, मैं अम्प्लस का HSE मैनेजर हूँ। अम्प्लस का सुरक्षा डिपार्टमेंट में काम करते हुए मेरे को 5 साल हो गया। तो इनिशियली हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं ट्रेनिंग के लिए, हमारे एम्प्लॉय को सेफ करने के लिए। आज एंड टुडे हम लोग 14+ मिनी अर्थ से प्लानआउट्स अचीव कर चुके हैं। तो हमारा जो मेन प्रिवेंशन का मेथड है, तो पहले जब भी वर्कर्स आते हैं, हम वर्कर्स को उनका लीगल कंप्लेंट्स के लिए SAPF मेडिकल चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट का कॉन्फ्रेंस के हिसाब से फिर हमने उसको इंडक्शन देते हैं। ड्यूरिंग इंडक्शन हम लोग सोलर के बारे में सारा चीज़ समझाते हैं उसको कि कैसे आपको PPEs पहनना है। PPEs में हमारा जो मैंडेटरी PPEs है, हेलमेट, शू, जैकेट, उसको इस्तेमाल करके साइट में आपको एंट्री करना है। उनका साथ साथ एक गेट पास में उनको इशू किया जाता है, ताकि वो आइडेंटिफाई हो कि वो अम्प्लस का ही वर्कर है। जब भी वो साइट में जाते हैं, फिर साइट में जब भी वो रूफटॉप सोलर में हम काम करते हैं, रूफटॉप पे आजकल बहुत सारा मैन हज़ार है, जिसमें बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है, फेटल भी हुआ है। तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए हमको जो स्पेसिफिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इशू करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा साधन। तो उसमें हम लोग सेफ्टी हार्नेस भी प्रोवाइड करते हैं। हार्नेस जब भी हम प्रोवाइड करते हैं, अम्प्लस का जो स्टैंडर्ड है कि हम लोग जब भी छत में काम करते हैं, तो पूरा हम लोग सिर्फ वॉकवे में थ्रू चलते हैं, और उसके बाद जो हार्नेस को हुकिंग होता है उसको कंटिन्यूसली हुक करते हैं, ताकि इनकेस कोई अगर स्लिप कर जाए वो नीचे ना गिरे, तो छत में ही रुक जाए, और सेफ्टी के लिए। उसके बाद
हम लोग मंथली रिवॉर्ड रिकॉग्निशन प्रोग्राम भी करते हैं। एवरी मंथ ये हमारा एम्प्लॉयज़ का स्टैंडर्ड है मैंडेटरी है कि जैसे कि वर्कर को हम लोग अगर मोटिवेट करते हैं हर महीना, तो सेफ्टी के बारे में अपने को खुद को इंटरेस्ट दिखाता है कि हमको अच्छा करना है। तो इसलिए हम हर एवरी मंथ रिवॉर्ड रिकॉग्निशन प्रोग्राम भी हम साइट में कंडक्ट करते हैं। और हमारा ये भी प्रोसेस है कि जो भी हमारा साइट स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम लोग जो भी साइट इंचार्ज है, वर्कर्स है, मैनेजर्स हैं, सबका जॉइंटली मीटिंग की वजह से एक रिस्क असेसमेंट कंडक्ट किया जाता है ताकि साइट का बारे में क्या क्या खतरा है वो आइडेंटिफाई हो सके। उसका हिसाब से भी साइट स्पेसिफिक हम लोग कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करते हैं। साइट में जैसे हो गया, हम लोग करते हैं कि स्काईलाइट कवरिंग, जितना सारा स्काईलाइट है उसको हमने मेटालिक मेश से कवर कर देते हैं। इनकेस कोई अगर गलती से भी स्टेप इन करे स्काईलाइट में, उसमें वो नीचे ना गिरे। और एवरी पेरी जो भी सोलर प्लांट हम लोग लगाते हैं तो प्लांट में हम लोग 1 मीटर डिस्टेंस गैप छोड़ देते हैं ताकि कोई एज में हमको ना आ जाए रूफटॉप का, क्योंकि हाइट है नीचे से 15 मीटर 20 मीटर होता है, ताकि नीचे अगर एज में कोई चला जाएगा, बाई चांस गिर जाएगा तो हम लोग फिर उसको वो एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसी के लिए हम लोग पूरा पेरी में 1 मीटर हम कंट्रोल ये कर देते हैं। और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम लोग विजुअल बैरिकेड भी रहते हैं विद इन 1 मीटर का रेंज में रूफ में, ताकि उसी 1 मीटर वार्निंग के एरिया के अंदर बाहर कोई एंटर ना करे। और उसके बाद हम लोग ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल, क्योंकि सोलर जो इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा खतरा होता है इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न इंजरी, इलेक्ट्रोकशन ये होता है। तो उसके लिए हम लोग मेंटेन करते हैं कि परमिट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल परमिट सिस्टम है, उसको हम फॉलो करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद हमारा लोटो भी सिस्टम है, लॉकआउट टैगआउट सिस्टम। और लोटो का जो ओनली ऑथराइज पर्सन है हम उसको सिर्फ अलाउ करते हैं। ऑथराइज पर्सन में उसमें हम लोग फ़ोटो डिस्प्ले करते हैं वो टैग में, ताकि सिर्फ उसी जो ऑथराइज पर्सन है उस लोटो की को हैंडल करे, और जब भी उसका काम खत्म हो जाए उसको फिर वो रिमूव करे। तो ऐसे ही हम लोग सेफली ही इलेक्ट्रिकल जितना वर्क है हम लोग आज तक भी कर रहे हैं। Our aim zero harm. Our aim zero harm. Our aim zero harm. Our aim zero harm. Our aim zero harm.